Okay, students, good morning, and we will start the chapter communication and network concepts. So, in the lower classes, I think in your syllabus, networking, meaning of networking, its benefits. In class 10th, there are like what is the meaning of HTML, then different protocol, HTTP protocol. All of these things are covered in this chapter. So, first of all, what is the meaning of networking? Network means when we interconnect two or more computers with each other, it is called networking. Because a single computer is called standalone computer. There are so many drawbacks of a standalone computer. We can't share the files without pen drive or other secondary storage devices. For example, one in one computer, one file is saved. We want to use in another computer, we will have to transfer that file. Second one is we can't share hardware devices. For example, printer is connected with one computer. We can't get the printout from second computer. Reason is we can't share hardware devices. We can't share software. For example, in first computer there is MS Word, and we want to use in second computer. It is not possible in the case of if the computer there is no any networking. But uh, when we connect these computer with the help of wire or without wire, this is called networking. So in networking is a collection of interconnected computers, and this is called networking. So their benefits are resource sharing, means hardware sharing. Reliability means suppose we have a same file in two computers, and in one computer there is a problem, so we can access that file from second computer. It means we can faith on the system, we can retrieve the data. It is just like a backup. Next is cost factor. Suppose one printer is providing services to 20 computers in the case of network. If there is no any network, in that case 20 printers are required. So it is a cost factor. It means whenever you will use networking, the cost will be reduced. Overall hardware cost will be reduced. Next is when we connect two or more computer with each other, they can communicate, they can send the messages just like a chatting box. So these are the different usage benefits or benefits of networking. But there are some drawbacks. Drawbacks are the person who is using the network must be expert. Without knowledge of network, you can't use network. Okay. Second one is sometime the main computer collapse, the overall network will be collapse. Third one is cost factor. We need a switch hub, some extra hardware devices are required. So these are the disadvantages of a network. Now, uh, in if we go to the history of networking, the first network was ARPANET. Its full form is Advanced Research Project Agency Network, and it was established in 1969 by Department of Defense, US. तो उन्होंने क्या किया था कि they connected four computers with each other for sharing the research work in defense. तो डिफेंस में जो रिसर्च वर्क हो रहा था उसको शेयर करने के लिए उन्होंने फर्स्ट नेटवर्क बनाया था, और उस नेटवर्क का नेम दिया था आर्पानेट. और आफ्टर 69 1980 में द गवर्नमेंट ऑफ यूएसए ने यूनिवर्सिटीज को उस नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर दिया आर्पानेट के पास. इन बिगनिंग आर्पानेट वाज ओनली डिफेंस, फॉर डिफेंस मींस आर्मी का उसके ऊपर कंट्रोल था. पर इन 1980 some universities attached with the ARPANET, and that network now was renamed as NSFNet, National Science Foundation Network. Now, in 1990, the government of USA ने इसे open कर दिया, and now its name is Internet. So it is now open. Anybody can attach with the internet with the help of you can create websites. There is no any limitation. You can internet you without any restriction you can use. But ARPANET and NSFNet,
These were not open network, they were closed, means the only the authorized user can could use that. But internet is a totally open, anybody can use the internet without any restriction. So in 1969 ARPANET, in 1980s it is NSFNet, and in 1990s it is internet. Now, internet, its full form is international network. In your exam, there may be the question like write the full form of NSF, ARPANET, internet like this. So, internet full form is international network. It is a network of network. Now, there are some terms. Gateway. But a gateway is a device that connect dissimilar network. Now, I am giving one example. Uh, suppose I have one small network, and I connected these and create a small network. We know that when all the computers are connected just like a circle, this is called ring topology. And I have another network in which I use one central device, and this central device is called switch or hub. ऐसी टोपोलॉजी को आप कहते हैं स्टार टोपोलॉजी. Now network are of two different type. If we connect these two networks with each other, so अगर आपने इन दोनों को आपस में कनेक्टेड करना है, two different networks of dissimilar type, तो in between we need one special device that is called gateway. तो इन दोनों के नेटवर्क के बीच में हमें एक स्पेशल डिवाइस की जरूरत पड़ती है जिसे हम कहते हैं गेटवे. फॉर एग्जांपल, वन इज सीनियर लैब एंड अनदर इज जूनियर लैब, और अगर उनकी दे आर डिसिमिलर, डिसिमिलर कैसे, उनकी टोपोलॉजी चेंज हो सकती है, उनकी टेक्नोलॉजी चेंज हो सकती है, आगे जाके हम डिस्कस करेंगे. देयर आर टू टर्म्स, वन इज कॉल्ड TCP IP, another is called UDP. These are the different technologies. If technologies are different, it means these two networks are different. And if we want to connect these two networks with each other, this is with the help of a special device, and that device is called a gateway. Is it clear? So gateway always establish a connection between two dissimilar network. Why dissimilar? On the basis of topology, on the basis of technology. Now, next is uh, backbone. Backbone is a central interconnecting structure that connect one or more network, just like a tree, a trunk of a tree. Look at here. Here is a uh, two networks we connected with each other. Suppose I have another network, और उसको भी मैंने आपस में कनेक्टेड किया हुआ है, एक नेटवर्क बन गया हुआ है. अब इसको इसके बीच में हमारे पास सपोज हमने एक गेटवे लगाया हुआ है, ठीक है. अब ये गेटवे के साथ कनेक्ट हो गए, और ये गेटवे आगे दूसरे गेटवे के साथ कनेक्ट हो गया. तो यहाँ पे ये और ये दोनों गेटवे हैं, तो इन कंबाइंड दीज टू इज कॉल्ड बैकबोन. So it is a center connecting device that connect all the networks with each other. Is called a backbone. It means backbone is a collection of gateways, you can say. So it is a central connecting structure
जिसमें सारे के सारे नेटवर्क आपस में कनेक्टेड हो जाते हैं। उन डिवाइस के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बैकबोन। क्लियर? बिल्कुल क्लियर? एनी डाउट? यस बेटा। नाउ नेक्स्ट इज protocol. The set of rules for communication is called protocol. For example, when you open any website, there is a HTTP. This is called hypertext transfer protocol. Then there is a UDP. There is a TCP/IP. So many protocols. So what is protocol? It is a set of rules for communication. So it is a set of rules that computer should follow to connect with the network. It means, in short, we can say it is a set of rules for communication. So each computer that is connected with the network must follow that protocol. For example, in one computer, I'm using TCP/IP. In another computer, I will have to use TCP/IP. Otherwise, there will be no any communication. So set of rules for communication is called protocols. Now, workstation works when we connect any computer with a network. It is called workstation. So another names are node. इसे हम नोड भी कहते हैं, ठीक है, या होस्ट भी कह देते हैं कई बार. नोड, होस्ट, वर्कस्टेशन. So a computer that is attached with the network is called workstation. So another names are node or host. Now, networking. Any doubt, students? Diksha, any doubt? No, sir. Next is when we connect suppose I have three computers. If I connect these computers with each other, and every computer has some storage, और हर एक कंप्यूटर में अपनी अपनी मेमोरी में अलग अलग फाइल सेव है, कोई भी कंप्यूटर मेन नहीं है, तो ऐसे जो स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्किंग. पर सपोज इनमें से अगर हमने एक कंप्यूटर को मेन कंप्यूटर बना दिया, एंड दैट कंप्यूटर इज कॉल्ड सर्वर, or rest of computers are called client. A server is the main computer in which all the files are stored. All the files in this the server provides services to clients. It means whenever in the case of internet, when we open the any website, that website is saved in server. So you are just like a client, you are requesting for the service to the server, and server provides the services. The main computer, a computer that facilitates the sharing of data, software and hardware on network, it provides services to network. In other words, we can say it is the main computer in which all the data is saved, and it provides services to different computers. Now, here is one more term, client. A computer that is connected with the server is called client. So client always request for services. जब आप घर पे इंटरनेट यूज करते हो तो यू रिक्वेस्ट फॉर द सर्विसेज टू द सर्वर, तो आपका कंप्यूटर क्या बन गया? क्लाइंट कंप्यूटर. Now, in all the computers that are connected with the network must have one device that is called network interface unit. तो इसे हम कहते हैं कि एक छोटा सा एक डिवाइस है जो आपके कंप्यूटर के साथ अटैच होगा, जिसे हम कई बार लैन कार्ड भी कह देते हैं. तो लैन कार्ड के बिना आपके पास नेटवर्किंग नहीं होगी. तो प्रेजेंट टाइम में ऑल द कंप्यूटर्स में मदरबोर्ड पे ऑलरेडी इनबिल्ट होता है लैन कार्ड, पर पुराने कंप्यूटर में अटैच करना पड़ता था. तो इस कार्ड में का एक यूनिक नंबर होता है जिसे हम मैक नंबर कहते हैं. तो इट इज ए फिजिकल एड्रेस असाइंड बाय एनआईसी मैन्युफैक्चरर. तो जो कार्ड बनाते हैं तो उस कार्ड को एक यूनिक नंबर देते हैं जिसे हम कहते हैं मैक नंबर. तो इस ये तब बेनिफिट होता है जब हम दो कंप्यूटर को अटैच करते हैं. तो सपोज ये कंप्यूटर है और ये कंप्यूटर है, तो जब कनेक्ट करेंगे तो हर एक दोनों कंप्यूटर का अपना एक आईपी एड्रेस होता है, ठीक है.
तो इस कंप्यूटर को इसका आईपी एड्रेस पता होना चाहिए और इस कंप्यूटर को इसका मैक एड्रेस पता होना चाहिए। जब हम नेटवर्किंग करेंगे तो दोनों यूज होते हैं, एक आईपी एड्रेस भी यूज होता है, साथ में मैक एड्रेस। मैक एड्रेस क्या है? द फिजिकल एड्रेस गिवन बाय द एनआईसी मैन्युफैक्चरर। एनआईसी मींस नेटवर्किंग इंटरफेस यूनिट, मींस जो कार्ड, जो लैन कार्ड बनाती है कंपनी, वो उसको एक नंबर साइन कर देती है। जैसे इन केस ऑफ एनी व्हीकल, तो हर एक व्हीकल का एक चैसी नंबर होता है, ठीक है, तो वो उसके इंजन के ऊपर लिखा होता है, तो वो यूनिक नंबर है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप आधार कार्ड यूज करते हो तो आपका एक यूनिक नंबर होता है। तो ऐसे ही हर एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या नेटवर्क इंटरफेस यूनिट का एक यूनिक नंबर होता है, एंड दैट नंबर इज कॉल्ड मैक नंबर। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। पेपर में आई थिंक 99% चांसेस है पेपर में आपके पास आएगा स्विचिंग टेक्नोलॉजी में से कोई टू टेक्नोलॉजी को डिफरेंशिएट करना या उनको एक्सप्लेन करना। क्योंकि जब भी सी प्लस प्लस, इन द केस ऑफ सी प्लस प्लस, लास्ट उनके 10 ईयर्स में 5 to 6 टाइम ये वाला क्वेश्चन आया था। तो चांसेस है इस बार भी आपके पेपर में, फाइनल पेपरों में, स्विचिंग टेक्नोलॉजी में से कोई ना कोई पेपर में क्वेश्चन आएगा। तो व्हाट इज switching technology? Transmitting the data from one computer to another computer is called switching technology. Now there are three type of switching technology. One is called circuit switching, message switching, packet switching. और सर्किट स्विचिंग क्या है? सर्किट स्विचिंग में क्या होता है बेटा? विद द हेल्प ऑफ वायर और वायरलेस, पहले दो कंप्यूटर्स में आपस में कनेक्शन बनता है, ठीक है। जैसे तो ये दो कंप्यूटर है, हम इनके आपस में वायर लगा दी, आपस में एक फिजिकल कनेक्शन बना दिया। अब उसके बाद वी ट्रांसफर द डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। सो देयर मस्ट बी ए फिजिकल कनेक्शन, clear, between the computers, the computer that is sending the data and the computer that is receiving the data. Now it is a end to end connection, means दोनों कंप्यूटर में डायरेक्ट कनेक्शन है। Is it clear? There is end to end connection, and remember one thing, there is no any limit for transferring the data. जितना डाटा आपने भेजना है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में शिफ्ट हो जाएगा। So this is called circuit switching. Now there is another type of switching that is called message switching. Message switching में क्या है कि in between two computer there is one special station, यहाँ एक स्पेशल कंप्यूटर जिसे हम कहते हैं स्विचिंग ऑफिस। तो पहले अगर दो कंप्यूटर में डाटा जाना, ट्रैवल करना है, तो एक थर्ड कंप्यूटर के पास पहले डाटा आएगा और उसमें कुछ देर के लिए रुकेगा, एंड देन दैट डाटा इज ट्रांसफर टू रिसीविंग साइड। क्लियर? तो इट इज जस्ट लाइक ए बफर। तो वो बफर का काम करता है। फॉर एग्जांपल अगर हमने डाटा ईमेल भेजते हैं, आपकी ईमेल यूएस से जा रही है, तो पहले क्या होगी, वो जीमेल के या याहू के बफर में उसके कंप्यूटर में जाएगी, उसके बाद वो ट्रैवल करेगी। तो दिस टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड मैसेज स्विचिंग। सो इट इज आल्सो कॉल्ड स्टोर एंड फॉरवर्ड। इट मींस पहले ये जरूरी नहीं है देयर इज ओनली सिंगल स्टेशन, सिंगल जो आपके पास स्टेशन है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट कंप्यूटर से जो स्विचिंग ऑफिस में आया, फिर सेकंड स्विचिंग ऑफिस के पास गया, फिर थर्ड स्विचिंग ऑफिस के पास गया, ये जस्ट लाइक ए सर्वर जैसे है, उसके बाद लास्ट में ट्रांसफर हो गया। सो दिस इज कॉल्ड, सो इन दिस देयर इज नो डेडिकेटेड कनेक्शन इज रिक्वायर्ड। पहले क्या था, हमें वायर की जरूरत थी, अब हम क्या करेंगे, जो फोन का जो आपके पास लैंडलाइन फोन है उसमें इंटरनेट चल रहा है, उसकी हेल्प से हम यूज कर लेंगे, हमें डेडिकेटेड कनेक्शन की जरूरत नहीं होती। फर्स्ट केस में क्या था, डेडिकेटेड कनेक्शन की जरूरत है। ये सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है, आपने देखोगे यहाँ पे कैट केबल लगी हुई है, तो कैट केबल से हर एक कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हुआ हुआ है। फिजिकल कनेक्शन इज देयर, डेडिकेटेड कनेक्शन इज देयर। वो किसमें रिक्वायर्ड है, सर्किट स्विचिंग में। इसका मतलब ये जो टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज हो रही है वो कौन सी है, सर्किट स्विचिंग। बट whenever you will use internet, that will be message switching. Now third type of is called packet switching. Now जब आप नॉर्मली क्या करते हैं, जब मैसेज स्विचिंग में
डाटा आया, जितना डाटा आया आपने स्विचिंग ऑफिस के पास भेज दिया, उसने आगे भेज दिया, देयर इज नो एनी लिमिट ऑफ डाटा। पर ये बड़ी बड़ी कंपनी के पास ऐसी फीचर है, तो उन्होंने क्या किया होता है, डेडिकेटेड सर्वर परचेज किए होते हैं। पर नॉर्मल बीइंग, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, हम क्या यूज करते हैं, इंटरनेट यूज कर लेते हैं। उस केस में क्या होता है, डाटा सबसे पहले आपके छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होता है, और वो उन्हें हम कहते हैं पैकेट्स। क्या कहते हैं, पैकेट। और वो पैकेट, छोटे छोटे पैकेट्स अलग अलग लोकेशन से मूव करते हैं एंड गो टू द डेस्टिनेशन, और वहां पे जाके रीअसेंबल हो जाते हैं। तो इसे हम कहते हैं पैकेट स्विचिंग। तो मैसेज और पैकेट स्विचिंग में देयर इज ओनली वन डिफरेंस। इन मैसेज डाटा जितना आया एज इट इज ट्रांसफर कर दिया, बट इन द केस ऑफ पैकेट स्विचिंग डाटा इज डिवाइडेड, और मैसेज स्विचिंग में देयर इज ओनली वन पाथ, एक से पाथ से दूसरे पाथ में डाटा चला गया। पर पैकेट स्विचिंग में डाटा इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पैकेट्स, एंड ऑल दीज पैकेट्स आर साइमल्टेनियसली मूव फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड बाय यूजिंग डिफरेंट पाथ। फॉर एग्जांपल, one we are sending one data to suppose one computer to in New Delhi। तो हमें पता है कि डाटा हो, फर्स्ट डाटा मूव टू लुधियाना, लुधियाना एंड अनदर देन दिल्ली। एक पैकेट हो सकता है पहले जलंधर, देन चंडीगढ़, चंडीगढ़ से दिल्ली जाए। अलग अलग, हमें पता है पूरे वर्ल्ड में अलग अलग सिटीज आपस में कनेक्टेड हैं, तो वो अलग अलग लोकेशन में से डाटा मूव करता है। जब आप इंटरनेट में कोई भी फाइल ओपन करते हो तो वो छोटे छोटे पैकेट्स में आती है, और वो अलग अलग लोकेशन से होके आ रही होती है। तो उसे हम कहते हैं पैकेट स्विचिंग। तो इंटरनेट इज टोटली बेस्ड ऑन पैकेट स्विचिंग, एंड इन पैकेट स्विचिंग देयर इज ए अपर लिमिट, देयर इज ए 1500 बाइट्स। ठीक है, कितनी होती है उसकी लिमिट, 1500 बाइट एक पैकेट की होती है। ठीक है, अगर हमारी फाइल का साइज ज्यादा है तो इट विल बी डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ पैकेट्स। क्लियर है बेटा? इन क्लास आई थिंक इन 10th हमने डिस्कस किया था टीसीपी आईपी। तो टीसीपी ये डिवाइड करता है डाटा को छोटे छोटे पार्ट्स में। क्लियर, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो देयर आर 3 टेक्नोलॉजीज। वन इज सर्किट स्विचिंग। इन दिस, if physical connection is dedicated, physical connection is required between different computers, this is normally copper, जो आप नॉर्मली वायर करते हैं कॉपर वायर ही होती है। ठीक है, तो जैसे कैट केबल एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में लगा दी आपने। सेकेंड वन इज कॉल्ड मैसेज स्विचिंग। इन दिस केस देयर इज switching stations are there. So first data go to the switching station, and then data go to the receiving side. So there is just like a buffer. It is called store and forward. But third type, that is an advanced one, in which we use internet. In this, data is not travel as it is in to the second computer. First, it is divided into small parts, and these small packets are travel in the same time from one side to another side. This is called a packet switch. Now there is a difference between, पेपर में difference बहुत आता है। मैसेज स्विचिंग, देयर इज नो लिमिट ऑफ ब्लॉक, कोई लिमिट नहीं होती। हाँ, बट अगर आप पैकेट स्विचिंग यूज कर रहे हो, तो मैंने अभी बताया कि पैकेट स्विचिंग में एक पैकेट का कितना साइज होता है, 1500 बाइट्स। ठीक है, तो उससे ज्यादा हो जाएगा तो 2 पैकेट्स बन जाएंगे, 3 पैकेट्स बन जाएंगे, 4 पैकेट्स बन जाएंगे। नेक्स्ट इज डाटा पैकेट्स आर स्टोर्ड इन ए डिस्क, डाटा पैकेट्स आर रिमेन स्टोर्ड इन द मेमोरी। तो बेटा जो मैसेज स्विचिंग है, इस टेक्नोलॉजी में आपके पास जो डाटा स्टोर होता है वो हार्ड डिस्क में स्टोर होता है, पर जो पैकेट स्विचिंग में आपके पास रैम में डाटा स्टोर होता है। तो इट इज अ वेरी माइनर पॉइंट, जब भी आप इंटरनेट यूज करते हो आपका सारा कुछ रैम में पड़ा होता है। ठीक है, रैम से डाटा मूव करता है। थर्ड इज एक्सेस टाइम इज मोर एज कम्पेयर टू द पैकेट स्विचिंग, क्योंकि फाइल बहुत बड़ी है, तो वन साइड से दूसरी साइड में जब मूव करेगी, सपोज एक 1 GB की फाइल है, जब तक वो वन कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में शिफ्ट नहीं होगी, फाइल ओपन नहीं हो सकती। पर जो आपके पास पैकेट स्विचिंग है, एक ही टाइम में छोटे छोटे पैकेट्स अलग अलग लोकेशन से मूव कर रहे हैं, तो उसमें डाटा डिलीवरी होने में टाइम कम लगेगा। और कई बार आपने देखा होगा कोई इमेज इंटरनेट में ओपन हो रही है तो धीरे धीरे ओपन हो जाती है। ठीक है, आपने कई बार देखा होगा फर्स्ट पोर्शन आ रहा है, धीरे धीरे खुलती है, तो उससे क्या होता है कि जितने पैकेट्स आते रहते हैं फाइल ओपन होती रहती है। तो इट मींस पैकेट स्विचिंग में असेसिंग टाइम रिड्यूस होता है। तो
First is no limit of data, but in the case of packet switching there is a limit of data. But in the case of second difference is in message switching data is saved in disk, ठीक है, hard disk. But in the case of packet switching that data is saved in the main memory. Main memory कौन सी होती है? RAM. और third difference is accessing time is more as compared with the packet switching. So packet switching is fast, you can say, as compared with the message switching. Now, there are some terms used in networking. One is called data channel. The information or data carry from one end to another in the network is called channel. For example, अगर हमने कोई डाटा जूनियर लैब में भेजना है तो एक आपने वायर यूज कर ली तो हमें उसको चैनल कहेंगे. सो इट इज ए डाटा जो अपने कैरी जिस वे से जहां से डाटा निकल के जा रहा है डाटा, उसे हम कहते हैं डाटा चैनल. तो डाटा चैनल कुछ भी हो सकता है, आपके पास वायर्स भी हो सकती हैं, आपके पास वायरलेस भी हो सकता है. देन देयर इज ए बाउट एंड बिट पर सेकेंड. तो जो आप डाटा बेचते हो, ठीक है, तो वो आपके पास उसकी कैलकुलेशंस बिट एंड बाइट्स में होती है, ठीक है. तो हमने लोअर क्लास में ये भी पढ़ा हुआ था, व्हाट इज बिट? इट्स ए बाइनरी डिजिट, ठीक है. तो उसके उसमें आपके पास अगर 0 and 1 these are bit. Collection of 8 bit is called 1 byte. Collection of 1024 byte is called 1 KB kilobytes, and 1024 KB like 1 MB like this. Clear? And collection of 4 bit is called 1 nibble. तो ये आपके पास कैलकुलेटिंग डिवाइस जो मेजरमेंट है. Next is bandwidth. When we transfer the data from one computer to another computer, the amount of data we can transfer from one computer to another computer in 1 unit of time means 1 second में कितना डाटा ट्रैवल कर सकता है, तो उसे हम कहते हैं बैंडविड्थ. तो जितनी ज्यादा बैंडविड्थ होगी उतनी ज्यादा स्पीड होती है. तो दो तरीके के इंटरनेट होते हैं, एक होता है ब्रॉडबैंड, एक होता है नैरो बैंड. ब्रॉडबैंड में डाटा ट्रैवल अमाउंट ऑफ डाटा पर सेकंड इज मोर एज कम्पेयर विद नैरो बैंड. नैरो बैंड अब आजकल यूज नहीं होता. पहले क्या था कि अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो आप टेलीफोन की वायर पीछे मॉडेम के साथ अटैच कर दो तो डायल अप कनेक्शन बन जाता था. तो डायल अप कनेक्शन को हम कहते हैं नैरो बैंड. पर प्रेजेंट टाइम वी आर यूजिंग ब्रॉडबैंड. जो अपर लिमिट को हम कहते हैं ब्रॉडबैंड, लोअर लिमिट को नैरो बैंड. नेक्स्ट इज okay students, when we connect two computers there are two methods. One is called guided media, another is called unguided. So guided media, there is a wire. So there are uh, total 3 type of wires: twisted pair, coaxial cable and fiber optic या optical fiber. तो इनमें से जो ट्विस्टेड पेयर है, जैसे कैट केबल आपने देखी होगी, ग्रे कलर की एक वायर जो होती है जो आपके मॉडेम के साथ मॉडेम टू कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होती है. तो प्रेजेंट टाइम में तो आप वायरलेस यूज कर रहे हो. अगर वायरलेस यूज नहीं करते तो एक ग्रे कलर की वायर जो जहाँ पे भी आपने देखी होगी नीचे से निकल रही है, तो इसे कहते हैं कैट केबल. हाँ, ये कैट केबल है, ठीक है. तो दिस इज आल्सो कॉल्ड ट्विस्टेड पेयर केबल. बट इसकी एक लिमिटेशन है. whenever it is in when we you can say कि इसमें एटमॉस्फेयर का बहुत इफेक्ट होता है. फॉर एग्जांपल रेन या सन जो ऊपर में पड़ी हुई है तो जल्दी ये ब्रेक हो जाएगी. तो जितनी ज्यादा ये ब्रेक होगी वहां पे आपके पास जो डाटा डिस्टर्ब होगा, डाटा प्रॉपर्ली कम्युनिकेट नहीं हो सकता. सेकेंड टाइप की वायर जो आपके पास यूज करते हो फॉर डिजिटल टीवी, जो आपने देखा होगा उसमें एक लेयर काफी बड़ी होती है, उसको आप कटिंग करते हो, उसके अंदर एक प्लास्टिक की लेयर होती है, उसमें देन एक मेटल की जाली से बनी होती है, उसके अंदर वायर होती है, दैट इज कॉल्ड कॉक्सियल केबल. एंड थर्ड टाइप ऑफ केबल जिसमें फाइबर यूज होता है, जिसमें आपके पास ग्लास लगा होता है. तो ये हम डिटेल में अभी डिस्कस भी करेंगे. दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल फाइबर. बट व्हेन वी गो फॉर अनगाइडेड मीडिया, तो इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स: शॉर्ट डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस. इन शॉर्ट डिस्टेंस वी यूज ब्लूटूथ. पेपर में ऐसे आ सकते क्वेश्चंस, write down any 4 wireless communication media. These are Bluetooth हो गया,
देन देयर इज ए वाईफाई, ठीक है, इट इज आल्सो ए शॉर्ट डिस्टेंस, इसमें ही आपके पास इंफ्रारेड होता है यूज, ठीक है। तो ये सारे के सारे इसमें आपके पास लेजर टेक्नोलॉजी, जब आप रिमोट यूज करते हो, रिमोट में से जो सिग्नल्स निकलते हैं दैट इज लेजर। तो इंफ्रारेड, जो पहले आपने देखा होगा कि जो रिमोट थे उसमें एक ब्लैक सा पोर्ट बना होता था, अगर आप किसी वॉल या कोई डिस्टर्बेंस आ जाए तो उसको क्रॉस नहीं कर सकते थे वो, उसे कहते हैं इंफ्रारेड। इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी इज वेरी ओल्ड टेक्नोलॉजी। आज से नियर अबाउट 10 ईयर बैक, जब आपने डाटा ट्रैवल करना था, आप तो ब्लूटूथ यूज करते हो या वाईफाई यूज कर लेते हो, उसमें क्या था, एक पोर्ट आपस में ब्लैक कलर के पोर्ट लगे तो उसको टच करते थे और डाटा ट्रैवल करता था, इंफ्रारेड पोर्ट। तो और लॉन्ग रेंज में देयर आर सैटेलाइट्स, देयर आर देन माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव। हाँ वो भी है, ठीक है। तो ये आपके पास लॉन्ग रेंज में आ जाएंगे। तो पेपर के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्वेश्चंस विल बी like two types of transmission media. This is guided and unguided. Example of three guided media. This is optical fiber, then coaxial cable and twisted pair. Example of unguided medias. This is Bluetooth, laser, infrared, microwave, radio wave, satellites. You can write there. Very short, very short. ठीक है, विद इन ए, यू कैन से इन ए रूम, वी कांट क्रॉस दैट रूम। लेजर का थोड़ा सा उससे इंक्रीज हो जाता है, बट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी वी नीड माइक्रोवेव, रेडियो वेव और सैटेलाइट्स। स्टूडेंट्स, एनी डाउट? दिव्या? Yes, sir. एनी डाउट बच्चे? No, sir. So okay students, I am closing the meeting, and today I will send this notes